हॅलो अँड वेलकम टू DSP दिवा स्टडी पॉईंट एज्युकेशन विदाउट स्कूलिंग. मित्रांनो, माझं नाव आहे दिनेश वाघ आणि या व्हिडिओमध्ये आपण सायन्स वनचं जे आपलं फर्स्ट चॅप्टर आहे ग्रॅव्हिटेशन त्यावरचे न्यूमेरिकल अभ्यासणार आहोत. सो बिफोर यू बिगिन मी तुम्हाला काही सांगू इच्छितो की आपल्या या फ्री एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटमध्ये तुम्ही भाग घेऊ शकतात. या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्ही आपल्या टेलिग्राम व व्हॉट्सअप ग्रुपच्या लिंकला जाऊन क्लिक करा व त्या ग्रुप्सला जाऊन जॉईन व्हा. मित्रांनो, आपण जवळजवळ सगळ्याच विषयांचे लेक्चर सुरू करत आहोत. तर मित्रांनो, मी एक रिक्वेस्ट करेल की तुम्ही या आपल्या इनिशिएटिव्हमध्ये आपल्या मित्रांनाही सहभागी करून घ्या आणि जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत ह्या व्हिडिओजला पोहोचवा. तर मित्रांनो, तर आता आपण या व्हिडिओला सुरू करूयात. तर सगळ्यात आधी न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करण्याच्या आधी त्या ग्रॅव्हिटेशनमधली काही इम्पॉर्टंट जे फॉर्म्युले आहेत ते आपण पाहणार आहोत. सगळ्यात फेमस जो फॉर्म्युला आहे तो आहे न्यूटन बाबांचा. तो म्हणजे the gravitational force is directly proportional to the product of the masses of any two bodies in the universe and inversely proportional to the square of distance between those objects, and this constant of proportionality between this sign is capital G. It is known as the universal gravitational constant, and this constant has the value of 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. मित्रांनो, पुढचा फॉर्म्युला बघूयात. तो म्हणजे वेलोसिटी. You know, velocity is nothing but displacement upon time. It is a vector quantity, whereas speed is a scalar quantity, and the formula for speed will be distance upon time, and the formula for velocity will be displacement upon time. We know that the famous formula of force, which is the product of mass into acceleration. Then we have three very famous formulas of laws of motion. V is equal to U plus AT. V square is equal to U square plus twice AS, and the last is S is equal to UT plus half AT square. And in those three formula, the A is sometimes replaced by G when there is acceleration due to gravity. Guys, here V is final velocity, U is initial velocity, A is acceleration, and T is time, whereas S is the displacement. So next formula is acceleration due to gravity, and its formula is gm upon r square. मित्रांनो, लक्षात घ्या, जी ची व्हॅल्यू ही कॉन्स्टंट कधीच नसते अर्थवरती. पोल्सवरती ही व्हॅल्यू असेल जास्त, तर इक्वेटरवरती ही व्हॅल्यू असेल कमी. नेक्स्ट फॉर्म्युला इज फॉर वेट. वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. मित्रांनो, कायम लक्षात ठेवा, वेटचं युनिट असेल न्यूटन, whereas the unit of mass is kg. Okay, weight is a kind of force. Then the formula for escape velocity will be under root of twice gr. For earth, the value of escape velocity is 11.2 km per second. Escape velocity is nothing but the velocity with which a body should be projected so that it will overcome the earth's gravitational pull. म्हणजे अर्थचा जो ग्रॅव्हिटेशन आहे त्याच्यापासून बाहेर पडण्यासाठी एखाद्या बॉडीला किंवा सॅटेलाइटला जेवढी वेलोसिटी लागेल अर्थच्या ग्रॅव्हिटेशन पूलमधून बाहेर पडण्यासाठी, ती वेलोसिटी म्हणजे असेल एस्केप वेलोसिटी, आणि पृथ्वीसाठी ती व्हॅल्यू येते 11.2 किलोमीटर्स पर सेकंड. सो गाइज, these were the some important formulas from this chapter. Now we will move to the examples. The first example is an object takes 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meters. 5 meters. It is given as, so given is height h, and it is nothing but displacement. So we will write here s is equal to 5 meters. And this object is taking 5 seconds to reach the ground, means t is equal to, means time is equal to 5 seconds. So what is the value of g on that planet? Means the acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity ची व्हॅल्यू आपल्याला विचारलेली आहे. मित्रांनो, आपल्याकडे आहे लॉज ऑफ मोशन. या कंडिशन मध्ये लक्षात घ्या मित्रांनो, that objects, the initial velocity of that object will be 0. The initial velocity will be 0, and we will have to find out small g, that is acceleration due to gravity. We have the third formula, that s is equal to ut plus half at square. मित्रांनो, थर्ड फॉर्म्युलाच का वापरला? बिकॉज हियर वी नो ut and
Yes, we will have to find out this A, and this A will be replaced by G, because this is the vertical motion. So the S is, we know, S is equal to 5 meters is equal to U is 0, 0 into anything will be 0, 0 into T will be 0, plus half, this A will be replaced by small g, and the T is 5, means 5 square. So 5 is equal to 25 g upon 2. So g is equal to 10 divided by 25, that means 2 divided by 5. So the value of g will become 0.4, and the unit will be meters per second square, meters per second square. And at the last we will write like the value of g on the planet is 0.4 meter per second square. So guys, मराठीतून परत एकदा रिपीट करतो बघा. या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला दिला होता डिस्प्लेसमेंट म्हणजे हाईट, ती होती 5 मीटर्स, टाइम दिलेला होता 5 सेकंड्स, आणि आपल्याला कुठली व्हॅल्यू काढायची होती, जी म्हणजे ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, अँड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट इज 0. आणि आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे लॉज ऑफ मोशनचा, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेअर. तर एस मध्ये त्याची व्हॅल्यू पुट केली 5, यू इज 0, देन ए म्हणजे जी झाला ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, अँड टी इज ऑल्सो 5. आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट the value of acceleration due to gravity as 0.4 meter per second square. I hope you understand this problem. So next question is the radius of planet A. Planet A ची radius दिली is half of the radius of planet B. Means radius of planet A is half of radius of planet B. It is given. If the mass of the planet A is m, what must be the mass of planet B, so that the value of g on B is half of that its value on A. The value of g, acceleration due to gravity, is value on B is half of its value on A, means GB is equal to half GA. Okay, so we will equate the both formulas for acceleration due to gravity. We know that the acceleration due to gravity's formula is small g is equal to gm upon r square, so that we will put here. So g for planet A will be this capital G will be constant, the mass of planet A and radius of planet A's square. Then same formula for planet B is equal to, planet B will be capital G, mass of planet B and square of the radius of planet B. Okay guys, and we have condition that GB is equal to half GA, GB is equal to half GA, GB is equal to half GA. So we will put these values here. So GB is equal to put here G MB upon RB square, I am talking about this equation, is equal to 1 by 2, GA's value is here G MA upon RA square. So guys, look here, this capital G will get cancelled, so we will get the ratio of masses and radii, so that what we have to find, MB. So MB will be equal to this RB square will be transferred here 1 by 2 as it is, MA into RB square upon RA square. So RB upon RA is what? RB upon RA will be 2, because RA upon RB will be 2, hence the reciprocal of that 1 by 2 is 2. So MB, that is mass of planet B, will be 1 by 2 into mass of planet A into 2's square. So it will give 4 upon 2 into MA. Therefore the mass of planet B will be twice of mass of planet A. This will be your answer. So at the last we will write in the sentence form that the value of mass of planet B will be twice the value of mass of planet A, so that the value of small g on B is half that of value of small a. ओके गाइज, मराठीतून एकदा एक्सप्लेन करतो. या ठिकाणी बघा, दोन प्लॅनेट्सच्या रेडियस दिल्या आहेत, प्लॅनेट ए आणि प्लॅनेट बी. विच इज द कंडिशन? द रेडियस ऑफ
planet A is half of radius of planet B, and the acceleration gravity on planet B is half of acceleration due to gravity on planet A. We have the famous formula for small g, that is gm upon r square, good morning upon r square. So for both the planets we will write the formula Ga and Gb. Capital G, that is universal gravitation constant. Okay, so masses will be changed and radii of both the planets will be changed, and then we will put those formulas in this equation, in this condition, and we find the mass of planet B is twice the mass of planet A to satisfy given condition. Guys, I hope you understood this problem. Now we will move forward to next question. The third question is the mass and weight of an object on earth are 5 kg and 49 kg. The mass and weight of an object on earth are 5 kg and 49 kg. Guys, always remember the unit of mass is kg. The mass is 5 kg and the weight is W, that is 49 Newton. As weight is a kind of force, its unit is Newton. What will be their values on the moon? तो हमें पूछा है मून पे उनका वैल्यू क्या होगा. Assume that the acceleration due to gravity on moon is 1/6 of that on the earth. Guys, we know the acceleration due to gravity on earth is what? 9.8 meter per second square. Therefore on moon will be gm is equal to 9.8 upon 6, that is 1/6, and this value is calculated as 1.633 meter per second square, means the value of acceleration due to gravity on moon is 1.633. So we know that the mass never changes, as mass is the matter contained in a body. So the mass on every planet of the same object is constant, so that the mass of that object on earth will be equal to mass of that object on the moon, and it is 5 kg. The only change will be happen to weight, because weight on the moon will be mass of that object on moon into acceleration due to gravity on moon, and this value changes, that is acceleration due to gravity. So mass is 5 into acceleration due to gravity on the moon is 1.633, and the product of those will be give us the mass of that object on the weight of the object on the moon, that is find out to be 8.17 न्यूटन. मित्रांनो परत एकदा मराठीत सांगतो बघा, आपल्याला एक ऑब्जेक्ट दिलाय अर्थ वरती. The mass of that object is 5 kg, weight of that object is 49 Newton. So we have given the condition that the acceleration due to gravity on moon is 1/6 of acceleration due to gravity on earth. That is the acceleration due to gravity on moon gm equal to 1/6 into capital small g, that is 9.8, and this value is 1.633 meter per second square. Guys, always remember the mass of the same object on different planets will be same, because mass is matter content इन द बॉडी. उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, वो सेम होगा. मतलब मास ऑन द अर्थ इज इक्वल टू मास ऑन एनी प्लेनेट, मास ऑन मून इज 5 kg कांस्टेंट. यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? वेट. सो हमें वेट कैसे निकालेंगे? W इज इक्वल टू mg, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द मून इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून. सो 5 into 1.63, it will give you 8.17 Newton. That is the mass of moon, mass of that object on moon, 8.17. Remember, weight of that object on moon 8.17 Newton. Mass unit is kg, whereas weights unit is Newton. Weight is a kind of force. Okay guys, we will move to the next question. An object thrown vertically upwards, vertically फेंका गया उसको, reaches a height of 500 मीटर. हाइट मिल गई, मीटर आ गया. h इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 500 मीटर. What was its initial velocity? u पूछा है तो v ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाके ऑब्जेक्ट रुकने वाला है. How long will the object take to come back to the earth? दोस्तों देखिए यहाँ पे, guys try to understand. This object is thrown, it will rest somewhere here and then again return. Means कितने मोशन हो रहे हैं ऊपर जाके नीचे आने के लिए?
एक वर्टिकल और एक डाउनवर्ड, ऊपर जा रहा है फिर से नीचे आ रहा है। तो हम जो टाइम कैलकुलेट करेंगे वो एक फेज के लिए टाइम कैलकुलेट करेंगे और उसको हमें डबल करना होगा, हाउ लॉन्ग मीन्स टाइम पूछा है, टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें जी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो हमारा कैलकुलेशन इजी करने के लिए। ओके गाइस, तो एच मतलब एस पता है, वी पता है, टी नहीं पता और यू नहीं पता। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तीनों फॉर्मूला लिख लूंगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यह कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, जो स्मॉल ए वो कहां से रिप्लेस होगा, स्मॉल जी से, स्मॉल ए will be replaced by small g and we will have to take the negative value of g because it is going upward against the gravity जा रहा है, मतलब वर्क क्या हो रहा है, नेगेटिव, इसलिए g क्या होगा, नेगेटिव। मीन्स इस फॉर्मूले में जहां भी a है वहां पे माइनस का साइन हमें यूज करना होगा। तो सबसे पहले मैं a फॉर्मूला यूज करूंगा, कौन सा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, क्यू यूज किया, v मुझे पता है 0, u निकालना है 2, a मतलब g हो जाएगा, यस हमें पता है, तो v क्या हो गया 0, u हमें निकालना है, a क्या हो गया माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि a की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, स्मॉल g, तो 2 इंटू स्मॉल g क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू एस क्या दिया है 500 मीटर। तो देखिए दोस्तों u स्क्वायर, ये 2 इधर गया पॉजिटिव हो गया, 500 इंटू 10, 5000 इंटू 2, 10,000, इट्स विल बी द वैल्यू ऑफ u स्क्वायर। सो u क्या होगा, 2 जीरो चले जाएंगे, u क्या आएगा आपका 2 जीरो चले जाएंगे, 1 सेकेंड, u क्या होगा 2 जीरो चले जाएंगे मतलब स्क्वायर रूट हो जाएगा, 2 जीरो चले गए मतलब क्या आएगा, u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड। ये किसकी वैल्यू मिले दोस्तों, u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड मीन्स द initial velocity of that object is 100 meter per second. Please write in the word form, the initial velocity of the object will be 100 meter per second, 100 meter per second. Now we will calculate the second aspect, second क्या है निकालना है हमें, टाइम निकालना है। ओके, तो टाइम किस फॉर्मूले में आ रहा है, इस फॉर्मूले भी आ रहा है और इस फॉर्मूले में भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये फॉर्मूले में यूज करूंगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी क्या है 0, u क्या मिला 100, ये माइनस हो गया g और t, तो क्या आ जाएगा, g मतलब क्या है 10 इंटू t, इट विल बी इक्वल टू 100, t इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 10, सो t विल बी 10 सेकंड्स, टाइम का यूनिट क्या आएगा 10 सेकेंड। हमें दो आंसर मिले, देखिए दोस्तों, फर्स्ट आंसर हमें कौन सा मिला, इनिशियल वेलोसिटी का, वो क्या है 100 मीटर पर सेकंड, और सेकंड आंसर है टाइम का, वो क्या आया 10 सेकंड, मतलब एक 10 सेकंड जो है वो क्या है एक फेज के लिए, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये टी एसेंट मिला है, टी डिसेंट भी उसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये T1 था, ठीक है, टोटल टाइम क्या आएगा, टोटल टाइम विल बी ट्वाइस T1 और वो क्या आएगा 20 सेकेंड्स। दोस्तों ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, टोटल टाइम विल बी 20 सेकेंड्स। तो हमें दो आंसर मिल गए, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड और टोटल टाइम मतलब दैट ऑब्जेक्ट विल टेक 20 सेकेंड्स टू कम बैक टू द अर्थ, वैसे आपको वर्डिंग में लिखना पड़ेगा। चलो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। यस, बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल, एक टेबल पे से बॉल गिरी एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड, सेकेंड दिया ना, सेकेंड मतलब किसका यूनिट टाइम, तो t इज इक्वल टू क्या लेंगे 1 सेकेंड, एज्यूमिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई लिख लेता हूं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड and the height of the table means h is equal to s, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है और ऑन रीचिंग द ग्राउंड वेलोसिटी पूछी, मतलब वो क्या है v, तो ऑटोमेटिकली u क्या हो गया 0, इनिशियल 0 था, वो टेबल पे था, नीचे आते वक्त जब वो स्ट्राइक होगा अर्थ पे ग्राउंड पे तो उसकी वेलोसिटी पूछी, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज v और डिस्प्लेसमेंट पूछा है,
डिस्प्लेसमेंट मतलब वो हाइट कितनी है, एच इज इक्वल टू एस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो तो फिर से फॉर्मूला लिखता हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में हम वैल्यू डालते हैं, v क्या है निकालना है, u क्या हो गया 0, a क्या हो जाएगा स्मॉल g हो जाएगा, स्मॉल g क्या दिया है, a इज इक्वल टू जी, a इज इक्वल टू जी, स्मॉल g दिया है 10, इंटू क्या निकालना है हमें, इंटू क्या दिया है टाइम, टाइम इज 1, देयरफॉर v की वैल्यू क्या होगी 10 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी मिल गई दोस्तों, v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ये कैसे मिली, फर्स्ट फार्मूला से मिल गई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी कौन सा फार्मूला यूज करना है, सेकंड फार्मूला। सेकंड फार्मूला कौन सा है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। देयरफॉर यस मतलब हमें एच निकालना है, हाइट निकालनी है, यू क्या दिया है, यू हो गया 0, 0 इंटू टी मीन्स 0, 1/2, ए हो जाएगा जी मतलब 10, इंटू टी क्या है, टी दिया है 1 स्क्वेयर। देयरफॉर एच इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5 मीटर्स। 5 मीटर्स हाइट हो जाएगी किसकी, टेबल की। सो वर्डिंग में क्या लिखेंगे, हेंस द हाइट ऑफ टेबल इज 5 meters, whereas the final velocity or the speed of the object on reaching the ground will be 10 meter per second. मित्रांनो मराठीत सांगतो, एक टेबलवरती बॉल ठेवलाय, त्याला रिलीज केला तो एका सेकंदात जमिनीवर पोहोचतोय, मीन्स टी इज इक्वल टू 1 सेकंड। टी क्या हो गया, टी हो गया 1 सेकंड। वर्टिकल कंडिशन है, ए इज इक्वल टू जी असेल and it is given 10 meter per second square. Okay, height is our target and then final velocity. Final velocity हमारा टारगेट है, h और s और v निकालना है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि टेबल पे रेस फॉर्म में था। मैंने दो फॉर्मूले लिखे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से मुझे क्या मिला, फाइनल वेलोसिटी v, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर से क्या मिला, h इज इक्वल टू 0, और वो कैलकुलेशन किया 0 प्लस 1/2 10 इंटू 1 स्क्वेअर, 1 क्या आहे टाइम, तो एच क्या हो गया, एच काय झाला 10/2, 10/2 म्हणजे काय 5 meters, 5 meters will be answer. So the answer height of the table is 5 meters, whereas the final velocity of the ball is 10 meter per second square. चलो next problem, it is second last problem. Okay, the masses of the earth and moon, अर्थ और मून के मासेस दिए, मासेस दिए तो यूनिट क्या होगा केजी, हमेशा ध्यान रखना है, 6 इंटू 10⁻24 kg द मासेस ऑफ अर्थ एंड मून, द मासेस ऑफ अर्थ एंड मून, मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg, whereas the mass of moon is 7.4 into 10⁻22 kg respectively. The distance between them, distance है फॉर्मूले में हम क्या यूज करते हैं d, ओके, डिस्टेंस क्या है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। गाइज दिस इज गिवन इन किलोमीटर, कन्वर्ट दिस इनटू एसआई यूनिट, तो 1 किलोमीटर मतलब क्या होते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, 10⁻³ मीटर। सो ये क्या होगा 10⁻³ से बढ़ जाएगा 3.84 इंटू 10⁸ 5 का क्या होगा 8 हो जाएगा इंटू मीटर्स, ये मीटर रहेगा, डिस्टेंस मीटर में कर लिया मतलब ऐसा यूनिट में कर लिया। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू, मीन्स हमें क्या पूछा है फोर्स पूछा है। न्यूटन बाबा का एक फेमस फॉर्मूला कौन सा है, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर और डी स्क्वायर, कोई भी ले सकते हो, मतलब डी और आर क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा दो ऑब्जेक्ट में का। कैपिटल जी दिया है क्या 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। m1 यहाँ पे क्या है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ विल बी 6 इंटू 10⁻4 हियर, देन मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10⁻22 एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस क्या है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर्स स्क्वायर। देखो ये बहुत रिस्की पार्ट है कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन कैसे करें 6.76 और 7.4 का पहले कैलकुलेशन करना है, और 10⁻11 10⁻24 10⁻22 का कैलकुलेशन करना है, देन यू विल गेट द स्क्वायर ऑफ 3.84 एंड द स्क्वायर ऑफ 10⁸ विल बी 10⁻16 10⁻
16. So after solving you will get the answer for force. The answer for force you will get it's near about 2 into 10 raised to 20 Newton. 2 into 10 raised to 20 Newton. It will be your answer for force. So at the last you will write the gravitational force of attraction between the two, means between earth and moon, will be 2 into 10 raised to 20 newtons. Force का unit है Newton, force का unit असतं Newton. So we will move to the next question. The question is our last question of this chapter, that is exercise. See, the mass of the earth is 6 into 10 raised to 24. लिखो, mass of the earth 6 into 10 raised to 24 kg दिलेला आहे. The distance between the earth and sun, earth और sun बोला है इस टाइम. The distance between earth and sun is 1.5 into 10 raised to 11 मीटर. 150 बिलियन किलोमीटर, उसको बोलते हैं 150 बिलियन किलोमीटर. इतने दूर है तब भी 8.14 सेकेंड में वहां से सनलाइट आ जाती है हमारे. 8 मिनट और 20 सेकेंड में वहां से सनलाइट आ जाती है. तो देखो लाइट का स्पीड कितना ज्यादा होगा. करिए कैलकुलेट. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से कैलकुलेट कीजिए. If the gravitational force between the two is 3.5 into 10 raised to 22 Newton, gravitational force F दिया है क्या 3.5 into 10 raised to 22 Newton. What is the mass of sun? What is the mass of sun? Mass of sun ms equal to question mark. कैपिटल G की वैल्यू दे दी 6.7 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. सो न्यूटन बाबा का फेमस फॉर्मूला F is equal to G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर. ओके, तो वो क्या हो जाएगा 6.7 इंटू 10 raised to minus 11 इंटू m1 मीन्स मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 raised to 24, m2 मीन्स मास ऑफ सन जो हमें निकालना है. डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो गया 1.5 इंटू 10 raised to minus 10 raised to 11 स्क्वायर. तो हमें फोर्स क्या दिया है. फोर्स में यहाँ पे एक काम करता हूँ एम एस के फॉर्म में लिखता हूँ. एम एस दोनों नहीं, मास ऑफ सन. मास ऑफ सन क्या हो जाएगा ये 1.5 इंटू 10 raised to 11 का स्क्वायर इंटू ए फोर्स. फोर्स क्या दिया है 3.5 इंटू 10 raised to 22 न्यूटन. 10 raised to 22 न्यूटन. देन डिवाइडेड बाय 6.7 इंटू 10 raised to minus 11 इंटू 6 इंटू 10 raised to 24, दैट इज मास ऑफ अर्थ. और कैलकुलेशन करने के बाद हमें वैल्यू मिलती है 1.96 इंटू 10 raised to 30 kg. कैलकुलेशन में टाइम नहीं गंवाना है. कैलकुलेशन कैसे करना है, जो 10 raised to 11 की टर्म है, 10 raised to की जो टर्म है उनको आजू बाजू लेके जाना है और बाद में जो पॉइंट में डिजिट है उनका मल्टीप्लीकेशन करना है सेपरेटली और 10 raised to के टर्म में ही आंसर लाना है. ऐसा ना हो कि 196 और आगे आप 28 बार जीरो लिख दिए, ऐसे नहीं चलेगा. 10 raised to के टर्म में ही आंसर लाना है. लेकिन सबसे पहले कैलकुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लॉजिक. ओके, द लॉजिक इज फॉर्मूला. और फॉर्मूले हमें सब रटने ही होंगे. फॉर्मूले हमें रटने ही होंगे. फॉर्मूले के कौन से चैप्टर में फिर से एक बार बता देता हूं. चलो फॉर्मूले फिर से एक बार बता देता हूं. फॉर्मूले देखो कौन से थे. पहला था फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, द ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. कैपिटल G की वैल्यू क्या थी 6.67 इंटू 10 raised to minus 11. यूनिट इंपॉर्टेंट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, यूनिट भूलना नहीं है. ठीक है. बाद में था वेलोसिटी दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स था मास इंटू एक्सेलरेशन. देन हमारे फॉर्मूले थे लॉज ऑफ मोशन के. v इज इक्वल टू क्या था u प्लस at, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as. और आगे वाला फॉर्मूला था s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. बाद में था एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला √2gr. उसकी वैल्यू अर्थ के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. मून के लिए क्या करेंगे 1/6 कर देंगे. ठीक है, कम हो जाएगी और वैल्यू कम हो जाएगी. अंडर में g को डिवाइडेड बाय 1/6 कर देंगे. वेट का फॉर्मूला था mg. वेट्स यूनिट इज न्यूटन, मास युनिट इज kg. ऑलवेज रिमेंबर. तर मित्रांनो हा होता आपला एक्सरसाइज. मी आशा करतो तुम्हाला इथून काहीतरी शिकायला मिळालं असेल आणि मी तुमच्याकडून अपेक्षा करतो की तुम्ही हा व्हिडिओ आपल्या मित्रमैत्रिणींपर्यंत जरूर पोहोचवणार व दिवा स्टडी पॉइंटला सपोर्ट जरूर करणार. तर मित्रांनो ॲट द लास्ट प्लीज लाईक द व्हिडिओ, शेअर द व्हिडिओ, प्लीज कमेंट
गिव योर फीडबैक एंड हेल्प अस इन द इनिशिएटिव ऑफ फ्री एजुकेशन। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, और सबसे जरूरी बात, जय हिंद।